Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10th. Today we are going to start our lesson number 4, part 1, from chapter number 7, Foreign Relations of Pakistan. Today our main topics are foreign policy, Pakistan's foreign policy and its objective. Topic number 2, relationship with neighboring countries. In this we will discuss relations with China. Okay students, today our topic is topic number 1, Pakistan's foreign policy and its objective. Questions which are we covered in first topic. Question number 5. What is meant by foreign policy? Explain the basic principles of Pakistan. Or explain the objective of Pakistan's foreign policy. Our first topic is foreign policy. A government strategy in dealing with other nations is called foreign policy. A foreign policy is a set of pre-established strategies designed and implemented systematically to manage a country's relationship with other nations. They are structured guidelines and regulate international political dealings. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे एक इंसान जो है सोसाइटी के अंदर अकेला नहीं रह सकता, इसी तरह एक स्टेट जो है वो वर्ल्ड के अंदर अकेली नहीं रह सकती. उसे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ता है, दूसरी स्टेट्स के साथ कॉपरेशन करना पड़ता है, और इस सब के लिए जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेटल डाउन करती है, जिसके अंदर वो कुछ पॉलिसीज जो है वो बनाती है, कुछ गाइडलाइंस अपने लिए बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको तय करती है कि उसे किस स्टेट के साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स जो है वो रखने हैं. Foreign policy of Pakistan. The foreign policy of Pakistan is primarily directed to the pursuit of national goals of seeking peace and stability through the international cooperation. Special emphasis is laid on economic development to take advantages offered by the process of globalization as also to face challenges of the 21st century. Our foreign policy is also geared to project the image of the country as a dynamic and moderate society. The foreign policy of Pakistan seeks to promote the internationally recognized norms of interstate relations, for example, respect for sovereignty and territorial integrity of all states, non-interference in the internal affairs of other states, non-aggression and peaceful settlement of disputes. Pakistan has therefore always sought to develop friendly and cordial relations with all countries of the world. Our next point is objectives, principle of foreign policy of Pakistan. The foreign policy of Pakistan is based on the following basic principles. First one is independent foreign policy. Second, protection of national interests. Third, protection of freedom and sovereignty. Third one is to avoid intrusion in the internal affairs of the states. And fifth one is implementation of Charter of UN. Since the emergence of Pakistan, the first and the basic principle of its foreign policy was independent foreign policy. लेकिन हम इस ऑब्जेक्टिव जो है उसको कायम नहीं रख पा रहे क्योंकि हम वेस्टर्न ब्लॉक के इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत ज़्यादा हैं. हमें सुपर पावर्स जो हैं वो जो कहती हैं वो मानना पड़ता है. Next principle is protection of national interest. That is why Pakistan doesn't care about any American influence and threats regarding change in its atomic policy, and they are also not signing the non-nuclear weapons proliferation treaty. इसी वजह से उसने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है, उनकी प्रोटेक्शन की जब बात आती है, तो पाकिस्तान किसी के इन्फ्लुएंस को या किसी के प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करता. और यही वजह है कि उसने एटॉमिक जो पॉलिसी है उसके ऊपर किसी भी स्टेट जो है उसका प्रेशर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, और अपने पर्सनल और इंटरनल मामला जो है उसमें किसी भी स्टेट को इंटरफेयर करने नहीं दिया. नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी.
It is main point of Pakistan's foreign policy that do live and let other live. Pakistan is not ready to develop any relation with that country which is against its freedom and sovereignty. कोई भी ऐसा रिलेशन जो है वो हम कबूल नहीं करते जो हमारी आज़ादी या हमारे इक़्तिदार या हमारी स्टेट के इंटरनल या एक्सटर्नल इश्यूज जो हैं उनको जो है वो मुतासिर करें. Next one is to avoid intrusion in the internal affairs of the other states. पाकिस्तान अवॉइड करता है किसी भी अदर जो दूसरी स्टेट है उसके इंटरनल इश्यूज जो हैं उन या इंटरनल अफेयर्स जो हैं उनके अंदर इंटरफेयर्स करने से. और ऐसा ही बिहेवियर जो है वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो भी हमारे इंटरनल जो इश्यूज हैं इंटरनल जो मैटर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना करें. Next one is implementation of UNO Charter is also one of the fundamental principle of Pakistan's foreign policy. पाकिस्तान जब से 1947 से यूएनओ का मेंबर बना है तब से जो है वो यूएनओ का जो चार्टर है उसको उसके जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहा है. और वो चार्टर इसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अहम जो है पॉइंट की तरह मौजूद है जिसे वो किसी भी सूरत पे ना तो नेग्लेक्ट करता है ना इग्नोर करता है. Our next objective is struggle for independence of Kashmir. Pakistan believes in the principle of supporting the oppressed nations in their struggle for the right of self-determination. इसीलिए कश्मीर इशू को पाकिस्तान हर मौके के ऊपर जो है हाईलाइट करता है. इसी तरह पैलेस्टीन इशू हो गया या अफगान इशू हो गया, इस तरह के इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान जरूर बात करता है. नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. Pakistan is an ideological Islamic state. Pakistan has been making sincere efforts to develop brotherly relations with all Muslim countries. और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीज़ डिक्लेयर की गई है कि हमें मुस्लिम स्टेट्स जो हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात जो भाईचारे वाले ताल्लुकात हैं वो कायम करने हैं. नेक्स्ट वन इज रिलेशंस विद थर्ड वर्ल्ड कंट्री. To develop friendly relations with developing countries, another important principle of Pakistani foreign policy. और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस जो हैं वो कायम करें ताकि जो इन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है उससे रोका जा सके. ये कंट्रीज जो है यूनाइट हो जाए, एक पेज पे आ जाए ताकि वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से रोक सकें. नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ बिलटरल रिलेशंस. Development of bilateral relations with great powers and other developed countries is also an important principle of Pakistan foreign policy. और इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने सिर्फ जो बड़ी जो स्टेट्स हैं या सुपर पावर स्टेट्स हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ उन्हीं के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं कायम किए बल्कि दूसरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अलावा जो स्टेट्स हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस कायम किए. जैसे एशिया के अंदर रशिया और चाइना मौजूद है, उनके साथ भी पाकिस्तान के बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं. नेक्स्ट वन इज टू अपोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड फेवर सेल्फ डिटर्मिनेशन. जो नस्ली इख्तलाफात हैं उनके अगेंस्ट हमेशा जो है वो पाकिस्तान ने बात की है. वो नस्ली इख्तलाफात जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता. उसके साथ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसको हमेशा सपोर्ट की है और ये इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं फॉरेन पॉलिसी के उसका अहम हिस्सा है. इसी वजह से हमेशा कश्मीर मूवमेंट, पैलेस्टीन मूवमेंट और एशियन स्टेट की जो दूसरी मूवमेंट्स होती हैं उनको हमेशा पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है. नेक्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड पीस. Pakistan is a strong supporter of human rights and peace. Thus, to promote basic human rights and maintain peace is a major principle of Pakistan's foreign policy. पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि जिस भी मुल्क के साथ ताल्लुकात कायम करे उसमें अमन जो है उसका ख्याल रखे, उसके साथ जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका ख्याल रखे और ऐसा कोई भी इक़्तिदाम ना करे जिससे किसी भी स्टेट के जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पे कोई बात आए या किसी भी स्टेट का जो पीस है इंटरनल और एक्सटर्नल वो खराब हो. और इसी वजह से वो बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो है वो मेंबर भी है और ये भी उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर शामिल है कि वो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्सेप्ट करेगा और उनका मेंबर बनेगा. जैसे कि वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर है, इस्लामिक
इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर है। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है सार्क जो है उसका मेंबर है। हालांकि अगर सार्क की बात करें तो उसके अंदर इंडिया के साथ उसके बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सार्क का मेंबर है क्योंकि वो चाहता है कि साउथ एशिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनके साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप्स हों। तो ये सब अहम निकात थे जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है। Okay, students, our next topic is topic number 2, Pakistan's relation with neighboring countries. Pakistan relations with neighbors. Importance of geostrategic position and social economic exchange. Pakistan is bordered by four important countries on all sides. China is in the north, India in the east, Iran in the west, Afghanistan in the northwest. Overview. Pakistan's relation with its neighbor India is not good. Both countries have been fighting over the disputed territory of Kashmir, over which they have fought two wars. Pakistan has also had difficult relations with neighbors Afghanistan and Iran. Pakistan has had a long and good relationship with the China. Okay, student, our first topic is Pak-China relations. Questions which are we cover in second topic part A. Question number 2. China is Pakistan's neighboring country which has always supported Pakistan in difficult time. Elaborate or assess the evolution of relationship between Pakistan and China. Our relations with China. Beginning of bilateral relations. The People's of Republic of China came into being in October 1949 और मुस्लिम स्टेट्स के अंदर पाकिस्तान फर्स्ट स्टेट है who recognized it first after its establishment on 31st September 1951. इसके बाद पाकिस्तान ambassador presented his appointment papers to Chinese leader. This way Pakistan China relations started. Next one is role of Pakistan for China's membership for UNO. Pakistan supported China to make it a permanent member of United Nations. As a result, it became member of UNO on September 25, 1959. और उसके बाद चाइना उन 5 कंट्रीज में शामिल हो गया जिनको वीटो देने का हक हासिल है। यानी पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट किया चाइना को यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनने में। Our next point is Pakistan-China agreements and border fixing. In 1961, Pakistan-China efforts started to settle down the boundary matters. फर्स्ट टाइम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ हदबंदी से रिलेटेड वो 1963 के अंदर हुआ और इस हदबंदी के नतीजे में पाकिस्तान गेट एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर्स आउट ऑफ 3400 स्क्वायर किलोमीटर्स डिस्प्यूटेड एरियाज. Pakistan of different accords, trade started between two countries in 1967 via Gilgit. इसके अलावा एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश की गई टेक्सला के अंदर चाइना के ताउन से, प्लस कराकोरम हाईवे जो है उसको कंप्लीट किया गया चाइनीज इंजीनियर के हेल्प के थ्रू 1969 के अंदर. A combined commission was found to increase cooperation in field of trade, science and technology in 1986. Next one is China's attempt for development of Pakistan. China has helped Pakistan in its development of Pakistan during 1950, when Pakistani economy was in chaos and depression because of Indian conspiracy. इस वक्त जो चाइना है उसने फुली सपोर्ट किया पाकिस्तान को ताकि वो अपनी डेवलपमेंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके.
इसके लिए उसने गुड्स को परचेज करने के लिए 83.86 मिलियन डॉलर्स जो है वो प्रोवाइड किए, जबकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जो गुड्स को इंपोर्ट कर सकता था वो 22 मिलियन डॉलर्स की थी। चाइना जो है उसने प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को दी, उसके लिए उसने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की। इन 1964 चाइना गिव goods of 60 million dollars to Pakistan and its payment was due over a period of 20 years। और 20 सालों का जो है वो टाइम दिया गया कि वो ये पेमेंट जो है वो रिटर्न करें। Our next point is agreements between Pakistan and China. Many agreements were signed in 1985. Under these agreements, China helped Pakistan in construction of Kamra complex. उसके साथ साथ War Ordnance Factory जो है उसको लगाया गया। China also provided funds of 273 million rupees for Sarad Heavy Electrical Complex। उसके साथ साथ टेक्सला के अंदर हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो लगाई गई। गुड्डू थर्मल इलेक्ट्रिकल स्टेशन जो है वो चाइना के ताउन से लगाया गया। नौशेरा गैस फैक्ट्री जो है वो जो है उसका सेटअप किया गया। प्लस मशीन टूल्स फैक्ट्रीज जो है उसको सेटअप किया गया। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो चाइना के ताउन से जो है वो सेटल डाउन किया गया। और ये सब जो है एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी मिसालें हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप की। Next one is role of China in Pak into wars. China helped Pakistan during War of September 1965. It gave at all possible economic assistance to Pakistan after the war. 1965 की जो वॉर है उसके अंदर सोशली इकोनॉमिकली जो है चाइना जो है उसने फुली सपोर्ट किया। बट इन 1971 वॉर डायरेक्टली जो है उसने इंटरफेयर नहीं किया वॉर के अंदर, बल्कि जो है हिडन जो कहने के छुप के जो है उसने ताउन किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो रशिया की जो है वो दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। Therefore, it supported Pakistan on political or moral grounds. However, after war, China recognized Bangladesh after Pakistan's recognition. अब जब चाइना ने जो है बांग्लादेश को तब एक्सेप्ट किया जब पाकिस्तान बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर चुका था। Our next point is Silk Route. The 900-kilometer long Silk Route or a Karakoram highway was constructed with the help of China. अब चाइना की मदद से एक चाइना और पाकिस्तान को लिंक आउट करने के लिए एक रूट बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया जिसे कराक्रम हाईवे भी कहा जाता है। और ये हाईवे जो है एक शानदार मिसाल है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की। नेक्स्ट वन इज विजिट्स एंड मीटिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स। बहुत से मौकों पर बहुत से ऐसे जो है इवेंट्स आए जिनमें पाक चाइना के जो प्रेसिडेंट्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट औकात में जो है वो मिलते रहे हैं, और बहुत से जो पाकिस्तान से रिलेटेड या चाइना से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस उसके अंदर किया गया है। Like first meeting was held between Pak China prime ministers at the occasion of Bandung conference in Indonesia in 1955. Next, President of Pakistan General M. Ayub Khan visited China in February 1964। और फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के बाद जो है चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, और डिप्लोमेटिक लेवल जो है उसके ऊपर भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसके अलावा हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ बोथ कंट्रीज हैव बीन पेइंग फ्रीक्वेंट विजिट्स टू ईच अदर्स कंट्रीज। डिफरेंट माहदे जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तय होते रहते हैं और ये सिलसिला चल रहा है। ट्रेड से रिलेटेड माहदी होती हैं। इसके अलावा और बहुत से जो है एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए जाते हैं, इसलिए दोनों के जो हेड्स हैं वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट फॉर पाकिस्तान पॉलिसी। पाकिस्तान ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई है और जब जो पॉलिसीज बनाई हैं चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान पॉलिसीज। It is evident from both countries' common stand for Kashmir dispute, Palestine dispute और अफगानिस्तान dispute। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब भी पाकिस्तान को बड़े जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ा है, जैसे कश्मीर डिस्प्यूट था उसके ऊपर भी चाइना जो उसने फुल सपोर्ट दी, अफगान डिस्प्यूट था, फलस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई तो उसके लिए भी चाइना ने उसके हक में जो है आवाज़ उठाई।
Next point is past, present, and future of Pak-China relations. पाक चाइना रिलेशंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन बीच में कुछ उतराव चढ़ाव आता रहा। जैसे जो अयूब खान है, उन्होंने ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप को दी, तो उस वक्त चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। देन जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे, उनका रिलेशनशिप चाइना की निस्बत रशिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। तो तब ज़रा पाक चाइना रिलेशंस में थोड़ा सा जो है वो एक टर्न आया। लेकिन उसके बाद जल्दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनको अंदाज़ा हो गया और उन्होंने जो है अपना रुख चाइना की तरफ किया, तो रिलेशनशिप फिर दोबारा से जो है बेहतर हो गए। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर इन फरवरी 1999 में जब उन्होंने विजिट किया, तो नवाज शरीफ के साथ जो है उनका जो रिलेशनशिप था वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हुआ। उसके बाद मुशर्रफ जो है वो विजिट करने के लिए गए। इस तरह जैसे जैसे हमारे जितने भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते रहे हैं, वो सब जो है उन्होंने चाइना को विजिट किया। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई और मुख्तलिफ जो मौके हैं उनमें चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक पेज के ऊपर खड़े हुए नजर आए हैं। और यही सब जो है उनकी दोस्ती का सबसे अच्छा सबूत है कि वो हर मौके पे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। So that's why there is a hope that Pak-China relations will further strengthen in the future. और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, फ्यूचर में ही पाक चाइना रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। Our next point is help in nuclear program. China helped Pakistan in a nuclear program or a technology. जो चाइना है उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। और उसके साथ साथ जब पूरी चारों तरफ से स्टेट्स का प्रेशर था कि हम जो एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका एक्सपेरिमेंट ना करें, न्यूक्लियर जो एटॉमिक बॉम्ब है उसका एक्सपेरिमेंट ना करें, तो उस वक्त चाइना ने हमें फुल सपोर्ट किया। Our next point is help Pakistan in war equipments. The current fleet of Pakistani Air Force includes Chinese interceptors and advanced trainer aircrafts, as well as an airborne early warning and control radar system used to detect aircrafts. Pakistan is producing the JF-17 Thunder multi-role combat aircraft jointly with China. इसके साथ साथ ऐसे जो है एयरक्राफ्ट्स भी बनाए गए जो लाइट वेट थे और आसानी के साथ जो है काराकोरम के ऊपर से जो है वो अटैक कर सकते हैं। और ये K-8 काराकोरम लाइट अटैक एयरक्राफ्ट जो हैं, ये भी चाइना के ताउन से चाइना की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। Conclusion: Pakistan and China enjoy close and friendly relations since the establishment of diplomatic relations in May 1951. Pakistan was one of the first countries that recognized the People's Republic of China. Over the years, the relationship has blossomed into an all-weather strategic cooperative partnership. In the 21st century, their bilateral relations gained global attention owing to free trade agreements, Gwadar Agreement, and CPEC. This work is based on secondary data and tries to explore all the aspects of China-Pakistan's relations. Islamic Republic of Pakistan has a long and cooperative relations with People's Republic of China. Home task. Learn the question 1 and 2. Learn and write first 5 short questions on your notebook from page number 52. Okay students, I hope you understood all the topics very well. Complete your home task on time. Thank you.